નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સનસનીખેજ ન્યૂઝ। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરા તેમજ કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ સાથે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેરાએ યુપીના લખીમપુર ખીરી ખાતે યુપીની ભાજપ સરકારના મંત્રીના પુત્ર દ્વારા ખેડૂતોને કાર નીચે કચડી નાખવાના મામલે ભાજપ સરકારની મનમાની સામે શહેરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદમાં સરકારને ઘેરીને આક્ષેપો કર્યા હતા। પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોરોનાની મહામારી દરમિયાન દેશના 14 કરોડ લોકો બેરોજગાર બન્યા હોવાનું જણાવ્યું। સાથે જ એમેઝોન કંપનીના એક કર્મચારીએ આરોપ લગાવ્યા અનુસાર એમેઝોન કંપનીએ ભારતમાં 8,546 કરોડની લાંચ આપી હોવાના મુદ્દે ભાજપ સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા। સાથે જ જ્યારે એમેઝોન કંપનીના ભ્રષ્ટાચારના મામલે અમેરિકા ખાતે તપાસ કરાવી શકતું હોય તો તે ભારત સરકાર દ્વારા કેમ કંઈ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા, ત્યારે ભારતમાં કોણે કોને લાંચ આપી તેની ન્યાયિક તપાસ થવી જોઈએ અને જવાબદારોને ખુલ્લા પાડીને સજા કરવાની માંગ કરી હતી। તેમણે સરકાર પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે વિદેશના લોકોને જાણે દેશના સ્થાનિક વેપારીઓને ખતમ કરવાની સોપારી આપી રાખી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। તેમણે એનડીએનું ફૂલ ફોર્મ છે નો ડેટા અવેલેબલ તેમ જણાવીને એનડીએ સરકાર પાસે કોઈ જ ડેટા નથી તેવી ટીખળ પણ કરી હતી। મનમોહન સિંહની સરકાર સમયે અર્થવ્યવસ્થા પટરી પર હતી, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદીજી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અલગ વાત કરતા હતા। તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપમાં કોઈ વિરોધ કરે તો તે નેતા મોર્નિંગ વોકમાં પણ ન જઈ શકે। ભાજપના સરકારમાં વિજય માલ્યા, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી વિદેશ ભાગી ગયા અને મુંબઈના પોલીસ કમિશનર પરમવીર સિંહ તથા રશિયા ભાગી ગયા હતા। મુન્દ્રા પોર્ટ પર ડ્રગ્સના કન્સાઇનમેન્ટ ઉતરે છે અને દેશના યુવાધનને નશાના રવાને બરબાદી તરફ ધકેલવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે બોલિવૂડના કલાકારોની પણ અટકાયત કરીને કાર્યવાહી બતાવવામાં આવે છે, પરંતુ જે તે સ્થળે આટલા મોટા કન્સાઇનમેન્ટ ઉતરે છે ત્યાં કેમ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી રહી કે તપાસ નથી કરતી સરકાર? ઉત્તર પ્રદેશમાં ખેડૂતો પર અમાનવીય કૃત્યોનો વિરોધ કરવા કોંગ્રેસના પ્રિયંકા ગાંધી દોડી ગયા ત્યારે તેઓને યુપી પોલીસે અટકાયત કરી રોકી દેવામાં આવ્યા। સાથે જ અન્ય કોઈ પાર્ટીના નેતાને ત્યાં જવાની પરવાનગી નથી। આ શું સૂચવે છે? શું છુપાવવા અને કોને બચાવવા સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે તે જનતા સમજી ચૂકી છે। વધુમાં તેમણે પંજાબમાં કોંગ્રેસ સરકારના સત્તા પરિવર્તન અને નવજોત સિંહ સિદ્ધુની બાબતને આંતરિક બાબત ગણાવી હતી। न मैं ले सकता हूँ, न अमित भाई ले सकते हैं। ये निर्णय एक हमारी सीडब्ल्यूसी होती है। सीडब्ल्यूसी में तय होता है कि अलायंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। कुछ राज्यों में हम मजबूत हैं, कुछ में नहीं है इतने मजबूत। तो फिर उस वक्त उस राज्य के महासचिव से जवाब तलब किया जाता है, चर्चा की जाती है, उसके विचार लिए जाते हैं और फिर निर्णय लिए जाते हैं। अच्छा पवन खेरा जी, अगले साल गुजरात विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, लेकिन कांग्रेस की उदाहरण देखिए कि गुजरात में कांग्रेस ने अभी तक प्रभारी नियुक्त नहीं किया है और बीजेपी ने पूरी सरकार बदल के नए चेहरे लेकर आए। कब प्रभारी नियुक्त कर रही है कांग्रेस गुजरात? कि प्रभारी बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन प्रभारी अगर जब बन जाता है तो राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में फिर वो एक दरवाजा होता है, प्रभारी का दरवाजा। अब जब प्रभारी जब तक नहीं है तब तक सैकड़ों दरवाजे खुले हैं। हमारे भत्तू भाई जब चाहें आकर वहां बात कर लेते हैं कि भाई ये हो रहा है। गायकवाड़ साहब जब चाहते हैं वो आकर बता देते हैं साहब ये हो रहा है। तो कई दरवाजे खुले हैं, सबकी बात सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि गुजरात के विषय में लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, ज़्यादा लोगों की बात सुनी जा रही। लेकिन बहुत जल्द ये निर्णय आपको साझा करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं उन लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा। पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमेज़न कंपनी के अंदर
एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने ये आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेजॉन कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, वाकिफ है किस तरह से जीएसटी लागू की गई। अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है, ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेजॉन कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया, किसको दी वो रिश्वत? ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है, और अमेरिका में जहां की ये कंपनी है वहां भी ये गैर कानूनी है। हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आपके सवाल बहुत हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछें और उसके बाद जो आप पूछना चाहें, आपका स्वागत। दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेजॉन से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेजॉन के अपने लोग ये आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन है, यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन है। अमेजॉन तो विदेशी कंपनी है, वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं। और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में लो। देश यह जानना चाहता है कि 8,546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए, पिछले 7 साल से सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है।